So let us start unit 3. Now we will talk about integrals. Up to unit 2, we saw all the concepts, applications, and different prospects of partial derivatives. Now, because we are dealing with function of several variables. Now we will take next unit, unit 3, chapter 15. Topic is multiple integral. Multiple integrals. इसकी पीडीएफ भेज दिएगा मल्टीपल इंटीग्रल वाले की। ठीक है, पीडीएफ चैप्टर 15 की जी. So multiple integral means, because you saw that now we are talking about function of two variables and more than two variables. So multiple integral concept comes when you are integrating your function of two variables and three variables and more than three variables. The first thing is we have here double integral. It has several applications like finding volumes, areas, moments, center of mass. These things can be calculated using multiple integrals. So you will see also that how and where we can use these multiple integrals practically. So first thing you have double integral. We will start with double integral. You are already familiar with single integral. When you are in single means when you are integrating a continuous function fx over an interval a comma b, you know you can find the integration. If we are taking the definite integral, we will be talking definite integral here. When limit is given, it is called definite integral. You know you can integrate a to b a function fx dx. This function should be continuous. Now if you have function of two variables fx y, okay, and the region is given to you in place of this was your a line segment, but here now you have a rectangular strip, means because it's a function of 2y, so you will be having limit of a x as well as limit of y. This is the region. So I want to find the double integral. Firstly, I will see how the formula comes. So if a to b c to d, suppose a to b c to d, what is the graph of this? It will be a rectangular strip, rectangle. No, this is a to b, x line a to b, and y line between c to d. So when you will plot it, you will be getting a rectangular region R. है ना? ये तो आएगा भाई. This is R, x and y. Now I want to find a formula for double integral. So what I will do, I will use the concept of Riemann sum. Riemann sum is what? What we do, we divide this rectangular region into some small rectangular region by drawing strips parallel to y-axis and parallel to x-axis. Are you getting my point? I want to find the formula. Okay. So what I did, I just subdivided this rectangular region into sub-rectangular region. So what will happen? You just divide the lines parallel to x-axis, parallel to y-axis. So your whole rectangle will be divided into small rectangular regions. Here I can consider that, suppose just choose any arbitrary rectangle. This.
So here this arbitrary rectangle will be having some small length del x, small width del y. So if I am taking, and here you can take any arbitrary point, suppose अगर मैं इसको कुछ k कह दूं, मान लो del x k del y k, है ना, then the point, arbitrary point will be xk comma yk. I can choose this. What I did, I just divided this whole rectangular region into small rectangle region. Suppose I have taken n partitions. Suppose n है ये, है ना? These are n. You can count, it's easy. So what happened? I have chosen randomly any kth rectangle whose width is delta xk, length is delta yk. So what will happen? And a point, arbitrary point is xk yk. So what happening? In this way, you have how many rectangles? You have n rectangles, suppose, n small rectangles. So area of this rectangle will be what? Suppose if it is kth number, so area, if I am denoting by delta ak, what is the area of this rectangle? क्यों भाई? सर डेल एक्स डेल वाई Del x del y. या del x k del y k, because I have taken kth rectangle. So the area will be delta x k delta y, है ना? It is very important and easy concept. You understand it easily that how this definite integral comes in the picture, how it is coming. So this is delta ak, okay, and the value of fxy at this arbitrary point will be f of xk comma yk. The function है हमें, I want to integrate actually this function over this rectangular region. This is the concept. So I am using the concept of Riemann sum. What is Riemann sum? Riemann sum is called, now if I will write the summation of all these rectangles. So how many rectangles are there? Suppose there are n. So I can write Sn. Sn is the sum of I is equal to 1 to n, product of this value with the area. Okay, this is called Riemann sum. Now here you can choose sk yk arbitrary, any xk yk कुछ भी choose कर सकते हैं आप. I will choose any arbitrary point xk yk. The value of that will be fxk yk. So all these are arbitrary. Is it clear? है ना? Now if I am increasing the number of rectangles, what will happen? जितने ज्यादा rectangles करेंगे आप, means you are taking now more lines. Your delta xk and delta yk will be what? Smaller or greater? स्मॉलर सर Smaller होता चला जाएगा. Smaller. Yes, है ना? Smaller होता चला जाएगा. So what I will do, if I am taking n very large, you are getting very small rectangles. छोटे छोटे बनते चले जाएंगे. Or you can say कि suppose if it is very small, so you can say that limit, और किसी small rectangle की अगर मैं p, suppose p I am taking the width या length, so what will happen कि if this is norm of this, norm मतलब अगर इसका हम लेंथ ले लें, जो मॉड आपका होता है उसे अगर आर एन में लेंगे मोर देन 2 में, तो हम उसे नॉर्म कहते हैं. तो लिमिट p टेंडिंग टू 0, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n f x k y k delta a k, है ना? This I can write where what I am doing, norm p is what? It is the length and width. So when it is very small, your rectangle is increasing. तो इसका मतलब क्या हुआ कि n is increasing. So I can say that limit n tending to infinity. We can write limit as limit n tending, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि limit n tending to infinity summation I is equal k is equal, यहाँ k लिया हुआ है तो k ले लीजिए क्योंकि k था ये, k is equal to 1 to n f of x k y k delta a k. It means कि your
n इज वेरी लार्ज, है ना, अभी n लिए थे अपने पार्टीशन, अगर n वेरी लार्ज है तो अब ये जो सम आएगा, है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इट मींस व्हाट, इट मींस डेल्टा ए के इट इज टेंडिंग टू वेयर, जीरो, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, जितना n बड़ा करते जाएंगे डेल्टा ए के आपका क्या हो रहा होगा, इट विल बी श्रिंकिंग। एंड नाउ दिस एफ एक्स के वाई के, दिस इज आर्बिट्रेरी, यू कैन चूज एनी वैल्यू, ये एक्स के वाई के हम कुछ कहीं पे भी आर्बिट्रेरी चूज कर सकते हैं ना, देयर आर n number of choices, infinite choices for x k y k. So what happening, if any number of choice, this limit has the same value, है ना, limit exists and same value, no matter what values of x k y k we are choosing, then the function is said to be integrable and the limit is called double integral. Is it clear? When, सर इसको एक बार और बता दीजिए हाँ बता देता हूँ। सर, ये So जो this, इंटीग्रल वाला बता। जी जी, so this, इसे यहाँ लिख देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सबमिशन k इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ x के y के and delta a k, है ना, this quantity I have chosen, this is called Riemann sum. Here what I am taking, I am enlarging n, enlarging n, so what happening, it means कि delta a k tending to 0, है ना, it is understood as n tending to infinity, क्योंकि एरिया इसका स्मॉल होता चला जाएगा, आप इसको रेक्टेंगल बढ़ाते चले जाएंगे। So now because this value is arbitrary, f x k y k, x k y k is an arbitrary point, I can choose any point x k y k and you can find f x k y k. So when a limit of some says, इसको अगर मैं s कह दूं, when a limit of the sums, इसकी लिमिट अगर हम कहते मान लो कि s आ रही है, ठीक है, s, this exists and गिविंग द सेम है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो एग्जिस्ट करने में क्या होना चाहिए, दे शुड गिव द सेम वैल्यू, गिविंग द सेम लिमिटिंग वैल्यू, सेम लिमिटिंग वैल्यू फॉर एनी चॉइस ऑफ एक्स के वाई के, कोई भी चॉइस ले ले, है ना, then the function this f is said to be integrable, is said to be integrable, and the value and the limit, जो इसकी लिमिट निकल कर आएगी, कुछ वैल्यू निकल कर आएगी जाहिर है, दिस इज कॉल्ड द डबल इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड द डबल इंटीग्रल ऑफ f, double integral of f over the rectangular region R and denoted by double integral R f x y dx dy, इससे डिनोट करते हैं, da को dx dy लिख दिया, बात समझ में आई, बोलिए। सो दिस थिंग, है ना, ये जो आपका था, दिस विल बिकम double integral f x y dx y if the limit exists and unique for every value of x y k. This is the definition of limit actually, है ना, बोलिए। So what it सर will give सर is, ये वाली बात है हाँ सर, क्या, तो अगर तो गिविंग दिस लिमिटिंग वैल्यू फॉर एनी चॉइस ऑफ एक्स के वाई के, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने x के y के चूज किया था आर्बिट्रेरी पॉइंट, है ना, उस पे आपने f निकाला तो f की कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, f इज अ फंक्शन व्हिच इज गिवन टू यू, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस ऑन दिस रेक्टेंगुलर रीजन, तो हियर आई हैव चूजन x के y के, अब x के y के तो यू कैन चूज एनीवेयर ना इन द होल रेक्टेंगुलर रीजन,
choice is not limited here. So you choose any point and just take the multiplication of the area of that rectangle and take the Riemann sum. ठीक? So if this limit is unique and existing, then the value of limit is called double integral. x के y के तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना, आप इसमें कहीं भी चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये पॉइंट, आई कैन चूज एनीवेयर, तो कहीं भी आप चूज करें, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस, वैल्यू शुड बी सेम. जैसे लिमिट में आपका होता था, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, यू आर कमिंग फ्रॉम एनी पाथ, लिमिट शुड बी यूनिक, तभी तो हम कह रहे थे लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस. कोई पाथ ऐसा मिल गया लिमिट डिफरेंट होती थी, तो वी से डिपेंड्स ऑन द पाथ, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. तो यहाँ पर अब वी आर चूजिंग एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, whatever the point, if you take the value of f and take the limit of this thing, it should be unique. वो जो यूनिक लिमिट की वैल्यू है वही डबल इंटीग्रल होगा. और बताइए, एनी डाउट, एनी अदर डाउट? तो अगर हम इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स लेते तब भी डबल इंटीग्रल ही होता, तो ट्रिपल हो जाएगा ऑफ कोर्स, एफ एक्स वाई जेड, और क्या. यस, ओके सर. ठीक है, यस. सो हियर सर योर ये वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. जी, अगर 2 वेरिएबल्स है तो रेक्टेंगुलर रीजन है आपका, 3 वेरिएबल्स लेंगे तो आप, आई विल टेक अ पैरेलल पाइप, उसको डिवाइड करूंगा स्मॉल बॉक्सेस में. ठीक है, यही कंसेप्ट एक्सटेंड करेंगे आगे 3 डायमेंशन के लिए. सो हियर यू गॉट सर दिस. इंटीग्रल में जो है सर हमेशा रेक्टेंगुलर रीजन ही बन सकता है ना सर, नहीं, कोई स्फीयर नॉन टाइप रेक्टेंगुलर नहीं नहीं, रहता. नहीं कुछ भी बन सकता है. रेक्टेंगुलर रीजन इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर मैंने लिमिट स्केलर्स ली हैं, अगर मैं लिमिट फंक्शंस ले लूंगा तो ये कुछ भी बन सकता है, ये ऐसा वो बन जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक वही है आपका कि व्हेन योर रीजन इज नॉट रेक्टेंगुलर लाइक दिस. ठीक है, तो सर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सर यूज तो करते थे हम लोग 12th में, सब ग्राफ हाँ. ग्राफ बनता था जी. तो यहाँ पे समथिंग वी विल सी समथिंग मोर अबाउट इंटीग्रल है जो हमने 12th में पढ़ा उससे आगे. So here you can see that this function is continuous function throughout R. जो फंक्शन एफ एक्स वाई है ये कंटिन्यूस होना चाहिए फॉर द इंटीग्रेशन. अगर कंटिन्यूस, अगर एफ इज कंटिन्यूस थ्रू आउट आर, देन एफ इज इंटीग्रेबल. ठीक है, सिंगल वेरिएबल में भी आपका ये कंसेप्ट था कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, जिसको आप डिफरेंशिएट करते थे अगर याद हो वन वेरिएबल में, तो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल जो होता था वो कंटिन्यूस होता था, है ना. इसको हम इंटीग्रेट कर देते थे ए टू बी, स्ट्रिप लेके जो एरिया निकालते थे, ये एरिया दे देता आपको इंटीग्रल ए टू बी. ये अगर मैं dx मान लूँ इसकी हाइट, और ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये तो करते थे y dx, ये एरिया होता था बिलो दिस रीजन. यहाँ पर इट विल गिव यू एरिया, वॉल्यूम, आई विल सी ऑल दिस कंसेप्ट. सो हियर f इज कंटिन्यूअस, अगर नॉट कंटिन्यूअस देन इट मे बी पीस वाइज कंटिन्यूअस, है ना. अगर डिसकंटिन्यूअस है तब भी आपका इंटीग्रेबल हो सकता है, बट ओनली ऑन अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. So now next important concept, जैसे आपने जी. सर ये केवल कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए? नहीं, कंटिन्यूअस होना चाहिए. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, देन एफ इज इंटीग्रेबल. ठीक है. जी सर. नाउ यू हैव सीन इन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल दैट if you have a function then it will give you the area. Now in function of two variable you will see that if it is integrable you can find the volume, है ना. How to find the volume? देखिए, volume. So volume के लिए you will have to consider some solid body. So suppose I am taking a building type structure. You have a structure like this. इसका हमें वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा कि सम सरफेस एरिया में क्या होता था, एरिया में क्या होता था याद है भाई, ये मैंने ही बताया. एरिया में आपको एक फंक्शन गिवन होता था. ठीक, इसके व्हाट इज द एरिया, यू फाइंड दैट एरिया अंडर द रीजन
अंडर द कर्व, है ना, एरिया ऑफ अ रीजन अंडर द कर्व, ये तो करते थे आप। तो y इज इक्वल टू fx आपका कर्व होता था, उसके बिलो जितना एरिया आ रहा है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते थे। डू यू रिमेम्बर? जी सर। हाँ। Yes, नाउ sir. सपोज, अब आपको क्या दिया हुआ होगा, ये एक सरफेस गिवन है, दिस इज अ सरफेस, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, 3 डायमेंशन, ये सरफेस कहाँ होगा, 3D में होगा ना पॉइंट, ये एक सरफेस गिवन है, आई वांट टू फाइंड द वॉल्यूम अंडर दिस सरफेस। क्लियर है बात? एक सरफेस है, सरफेस कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग, कर्व, प्लेन, व्हाटएवर। सो व्हाट इज द थिंग, आई विल बी फाइंडिंग द वॉल्यूम अंडर दिस सरफेस। सपोज आपके पास, इसको मैं बना देता हूँ उसमें, ये 3 डायमेंशन होगा, सपोज ये z एक्सिस है एंड हेयर इट इज योर, ये इस तरीके से बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज योर x एक्सिस, या y, इससे हम y ले लेते हैं, इट इज योर x एक्सिस। सो दिस इज द रीजन, I want to find a volume. fxy is a positive function over a rectangular region R. तो नीचे तो एक rectangular region R होगा प्लेन में, xy प्लेन में, सपोज सेम वही x is lying between a to b, x आपका यहाँ से यहाँ, ये जो आपका लाई कर रहा है a to b, rectangular region, it is b, और पीछे का यहाँ पर a होगा, सपोज करो अगर मैं इसकी बाउंड्री यहाँ इस तरीके से बनाता हूँ तो इट विल बी सम a, and here it is lying between y पर C to D. Okay, so I want to find the volume under this function fxy. So it is a 3-dimensional figure. You can see it will become a solid region. So what I will take, जैसे I was taking a strip, यहाँ पर हम क्या करते थे कि strip लेते थे, here you will take a solid, क्या ले लें सर एक हाँ, क्यूबॉइड ले लेंगे एक solid। क्यूबाइड ले लें, इसके अंदर क्यूबाइड टाइप का एक कुछ आ जाएगा। सपोज आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग अ क्यूबाइड, इसके अंदर एक हमने इस तरीके से उठाया एक, तो ये जो आपके पास क्यूबाइड होगा इसकी कुछ लेंथ ब्रेथ होगी, ये तो करोगे भाई, जब यहाँ पे पीस, एक पीस कट करते हैं हम हमेशा, यही तरीका होता है, यहाँ पे हमने एक पीस कट किया इस तरीके से, तो वो इस तरीके से आएगा भाई, है ना, ये एक पीस है ऊपर, तो आई विल टेक दिस पीस एंड आई विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस। सो ये जो आपके पास नीचे आ रहा है इसका एरिया कितना होगा, डेल्टा ए के होगा, ये तो एरिया वही, बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना, इट इज इन एक्स वाई प्लेन, इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, एफ एक्स वाई से। सर तो क्वेश्चन के हाँ, तो अगर यू इफ यू डिवाइड दिस, वही जैसे आई एम डिवाइडिंग दिस होल सॉलिड 3-डायमेंशनल सॉलिड इनटू दिस स्मॉल पैरेलल पाइप्स, so what will happen, the, so what is the Riemann sum, Riemann sum will be summation, suppose वही क्या लिया था हमने, k is equal to 1 to n f of x k y k and delta a k, है ना, ये है। अब अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मींस नाउ आई एम इंक्रीजिंग दिस, तो डेल्टा ए की डिक्रीज हो रहा है, आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाइप्स, so what will happen, you will take limit n tending to infinity sn, ये अभी क्या दे रहा था, अभी ये स्मॉल पैरेलल पाइप का सम दे रहा था, जब आप लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे इट विल गिव यू द, एंड लिमिट इफ लिमिट एग्जिस्ट इट विल गिव यू व्हाट, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ जाएगा पूरी बॉडी का, एंड दिस विल बी व्हाट, आर एफ एक्स वाई डी ए, यानी कि डी एक्स डी वाई, इस तरीके से it will cover all bodies, समझ में आई बात नहीं? So I have divided the whole thing into some small parallel pipes and I increase the size of the parallel pipes. So what will happen? You will be getting the
सर स्क्रीन छोटी हो गई। वो मैं एक्चुअली मैं बुक का कॉपी खोलना चाह रहा था, बुक में इसका पीडीएफ दे रखा है, तो आई वाज बुक देख रहा था एक मिनट, आई वाज ओपनिंग द बुक। कहाँ गया एडवांस कैलकुलस? इट इज योर चैप्टर 16 या 15 सॉरी, एक मिनट, वो मैं शेयर करूंगा अभी आपको, तो आई विल शो अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, आप समझ जाएंगे कि क्या चीज आ रही है। एक मिनट खोलने दीजिए। इससे मैं थोड़ा सा अभी रोक के दूसरी चीज शेयर करूँ, होली क्यों नहीं होता अभी? हम्म, दिखे भाई नहीं अभी? नो नहीं सर। सर। हम्म, कहाँ गई? ये है। अब आ गया। ये देखिए, ये now look at this figure. This is the figure which I plotted here. Okay, you have this solid. So what I did, I just, and it is lying B to A to B, X lying A to B, Y lying between C to D. So why did I just take a small piece? This is parallel pipe figure है ना? And what I did, इसे parallel pipe बोलेंगे, क्यूब क्या बोलेंगे इसे? 3 डायमेंशनल सॉलिड जो है, ये क्यूबॉइड है, ये सर क्यूबॉइड ही जी। लग रहा है तो। क्यूबॉइड टाइप का फिगर है ना? तो यस सर, here वो the लाइक। हाँ, तो I choose arbitrary point x के y के, so the area on the xy plane delta a के I multiplied with fxy, so you can see कि this is the area, और ये fxy क्या है? ये तो height है ना, ये क्या होगी? z is equal to fxy, z coordinate is the height, so when you are multiplying area with the height, what will give you? It will give you the volume of this small small cuboid, yes, है ना? तो what I did, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बिकॉज अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हाट इज द डबल इंटीग्रल, इफ यू टेक लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड इफ लिमिट एग्जिस्ट, तो इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एसएन क्या है? सम ऑफ ऑल दीज स्मॉल क्यूबाइड्स, देन इट विल गिव यू द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे देगा? देखिए ये इन्होंने बहुत अच्छी फिगर बनाई, ये देखो, अगर n 16 है तो ये फिगर कैसे आ रही है? इस तरीके से, है ना? हमने n को 64 किया तो ये फिगर कैसे हो गई? और क्लियर हुई। एंड 256 किया तो और देखिए, इट इज जस्ट कवरिंग ऑल द रीजन, लुक, सर इट इज लुकिंग। पिक्सेल्स की तरह हो गई ये तो। हाँ, तो जितना जैसे आपने एंड इन्फिनिटी किया, जितना एंड आप बढ़ा लेंगे उतना ही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, तो हमने क्या कर दिया? एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इट विल गिव यू द मींस दिस स्मॉल पैरेलल पाइप विल कवर द होल रीजन। देखो ये स्मॉल पैरेलल पाइप्स थे, ये क्यूबॉइड्स थे, यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, इट इज गिविंग यू बेटर वैल्यू। देखो इसने सब कवर कर दिया, ये सारे क्यूबॉइड्स है, तो अगर मैं एन को इन्फिनिटी कर दूंगा तो इट विल गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक्सटेंड किया है। नाउ इट इज मोर क्लियर आई थिंक फ्रॉम दिस फिगर, है ना? एज एन इंक्रीजेस द Riemann sum approximation approach the total volume of the solid, दिखा है ये? तो ये Riemann sum approximation था हमारे पास, क्लियर? यस सर। चलो, नाउ वी विल सर सी ये दैट रिमान जी, अप्रोक्सीमेशन क्या है सर? ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ये Riemann sum है, ये दिस इज Riemann sum, मल्टीप्लाई द स्मॉल एरिया विद वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड देन टेक द सम, इसे Riemann sum बोलते हैं, ठीक है? Riemann sum को ही ओके। जब हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो वो आपका वॉल्यूम है क्या? वो एरिया, ये डबल इंटीग्रल इंटीग्रल क्या है? ये सम ही तो है, बस ये है कि आपका कंटिन्यूअस फंक्शन पर है ये, है ना? भाई एरिया में क्या होता है कि ठीक है। आपने स्मॉल स्ट्रिप ली है, एक स्ट्रिप का एरिया निकाला और एरिया सारे उसका सम कर दिया, सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, या ही तो किया हमने, वॉल्यूम निकाला इस स्मॉल क्यूबाइड का
और क्या करा, इसको डिवाइड कर, इसको पूरे एन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे रीजन में, उसका सम ले लिया। तो सम जो है आपका वही इंटीग्रेशन कब बन जाएगा, जब इट विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो Riemann sum approximate will give you the double integral in case of function of two variables। ठीक, चलिए, व्हाइट बोर्ड विजिबल। Yes, sir. चलो, नाउ द पॉइंट हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डबल इंटीग्रल। इट कम्स फ्रॉम द Riemann sum approximation। You just take the area of a small rectangle, multiply by the function fx के y के, and just take the limit. If limit exists and unique, then this is the value of double integral, and it can give you the volume under this concept. Now how to find the value of this double integral? That will be by Frobenius theorem. That is called Frobenius theorem. Frobenius theorem. Frobenius theorem for calculating double integral. कैलकुलेट कैसे करना है इसको, है ना, ये चीज कि यहाँ पर आपके पास डबल इंटीग्रल है, तो टू लिमिट्स हैं और टू वैल्यूज हैं dx dy। So this thing they have explained by taking an example. Suppose that you want to calculate the volume under the plane z is equal to 4 minus x minus y over the rectangular region R, x lying between 0 to 2 and y lying between 0 to 1, है ना। By the example they have explained, and then they are writing the statement. So what I want to find, I want to find volume under this surface। ये surface है आपको, कोई plane, ये क्या plane है ना, and over the region, ये region। तो if you will plot this, ये आपका जो आएगा plane, it will be looking like this। This will be plane। देखो ये plane कैसा है, if you will plot it, x plus y plus z is equal to 4। बताइए कैसा आइडिया लग रहा है प्लेन, हाउ इट विल बी लुक लाइक। दिस इज द प्लेन, यू कैन सी हियर। दिस इज द पिक्चर आई एम प्लॉटिंग हियर। देखिए, so here your, this is your x axis, this is your y axis। ठीक, now what happening, देखिए ये प्लेन है आपका, दिस इज अ प्लेन, z is equal to 4 minus x minus y। ये what is this, it is your x plus y plus z is equal to 4। यानी कि अगर आप इसे लिखेंगे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं, आई कैन राइट लाइक दिस। इट मींस x पे 4 इंटरसेप्ट, y पे 4, z पे 4। तो यहाँ पर ये 4 इंटरसेप्ट कर रहा होगा z पे, तो इस तरीके से प्लेन एक आएगा ये।